Students, good morning and greetings to all. I hope you are good, your family is well, and you well as well. Okay, so in this video, we'll be starting with chapter number 8, a short monsoon diary. Now, let's begin with before you read. Do you know what is a diary? It is a record of personal experience written day after day over a long period of time. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. One of the most famous diaries published as a book is the Diary of Anne Frank. Here are few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. सो बेसिकली डायरी, जैसे कि आपने 6th-7th में पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, डायरी यू राइट डायरी डेली, यू कैन राइट योर फीलिंग्स, इमोशंस, योर थॉट. इट इज़ जस्ट लाइक योर फ्रेंड. वट एवर यू फील, वट एवर यू सी इन अ इनफॉर्मल वे यू कैन राइट. ओके, जैसे लेटर्स हैं वो फॉर्मल है, बट इन डायरी यू कैन राइट इनफॉर्मली. सो हेयर दिस इज चैप्टर, और यू कैन से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फेमस डायरी, जो कि एक बुक की तरह पब्लिश भी हुई थी. तो उन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट्स मीन्स कुछ हिस्से लिए हैं उस डायरी के ऑफ रस्किन बॉन्ड, अ फेमस राइटर. ओके, एंड उस एक्सट्रैक्ट्स में या उस डायरी में क्या था, साइलेंट्स मिरेकल्स ऑफ नेचर. जैसे कि अगर उसको पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के ऐसा लगेगा कि नेचर में कितने मिरेकल्स होते हैं. नेक्स्ट, यू सी सच थिंग्स विच आर बियॉन्ड साइंस, विच आर बियॉन्ड थिंकिंग, बट इट इज़ हैपनिंग नेचुरली. समटाइम्स इट इज़ सो ब्यूटिफुल यू एन्जॉय इट, दैट यू कैन कॉल एज लाइफ लिटिल जॉय. For example, if you see a small bud, okay, then it slowly opens its petals, then more, then it makes a complete flower. Here, while we will be reading this chapter, you just open your mind, just imagine what is written, and you can easily visualize what it is written by Ruskin Bond and how it is portrayed. Okay, you can easily imagine it. So now it is written also regrets. Regrets कैसे कि if I say natural beauty, then there is also natural calamities, natural disasters, or some or the another thing जो कि अपन को अच्छी नहीं लगेगी. That might be regret, that might be a sorrow thing. So let's read the first extract, that is June 24. What is this bold June 24 means? That it is written on date 24 and month is June. So let's read. The first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist come climbing up the hills. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. It is melancholy here. Melancholy, melancholy, it's melancholy. Melancholy, not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago trees were ringing with the bird song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. So here it is the day when the first day monsoon mist. Now you have to imagine monsoon. Just close your eyes, just imagine monsoon. Okay, now first day of monsoon and mist. यहाँ पे जो राइटर है वो क्या है, एक ऑलरेडी हिल स्टेशन पे है या हिल्स जैसे सराउंडेड एरिया में. तो वो ये कह रहे हैं, व्हाट इज मिस्ट? नाउ यू कैन राइट डाउन. मिस्ट इज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एंड बेसिकली लिटिल लेस क्लियर देन अ फॉग. जैसे आपने फॉग कोहरा देखा है, मिस्ट क्या होगा, उससे थोड़ी सी हल्की हुई, उसमें भी दिखाई नहीं देंगी. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जहाँ पे मॉनसून में इतना अच्छा वेदर होता है, बट जो मॉनसून मिस्ट आ गई, मॉनसून होता है तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बट ड्यू टू मिस्ट
ओके, वो ये कह रहे हैं कि जो आसपास के जो हिल्स थे वो क्या हो गए थे, साइलेंट हो गए थे। कैसे? बिकॉज ऑफ द मिस्ट सो मेलेंकली। मिस्ट को यहाँ पे मेलेंकली का है। व्हाट इज मेलेंकली? वेरी सैड। द मिस्ट इज कॉल्ड मेलेंकली बिकॉज इट मेक्स पीपल फील मेलेंकली, कि जहाँ पे आप मानसून में इंजॉय करोगे वेदर, बट ड्यू टू मिस्ट यू कैनॉट सी हिल्स, you cannot see birds, you cannot see a area near you. So here the author is describing कि वो क्या कर रही है, कंसील कर लेती है हिल को, मीन्स कवर कर लेती है। मिस्ट जो है वो कवर कर लेगी हिल को, एंड इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंट टू, मीन्स कवर देम इन साइलेंट टू। जब आपको मानसून होगा या आपको कोई दिखाई नहीं देगा तो आप जनरली लोगों को बाहर नहीं देखोगे, सब कुछ क्वाइट हो जाएगा। एंड जहाँ पे वो कह रहे थे कि 1 hour अगो, मीन्स जहाँ पे 1 घंटे पहले ट्रीज वर रिंगिंग, रिंगिंग मीन्स बर्ड सॉन्ग्स थे वहाँ पे, मीन्स बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन ट्री। बट जैसे ही मानसून, मीन्स मानसून के डे में कभी भी बारिश आ सकती है, तो कह रहे 1 घंटे पहले तो इतना प्लेजेंट मौसम था, आपको अगर ट्रीज देख रहे थे तो सुनने में अच्छा लग रहा था, बट हियर इट इज नाउ very sad surroundings, and now the forest is deathly. Last line, deathly. Deathly means pale like, it is not pleasant. All in short is जो भी प्लेजेंट सब कुछ वेदर था या सराउंडिंग्स थी या सीनरीज थी, वो जो सीनरी थी बिल्कुल स्टिल हो गई थी, मीन्स रुक गया था। जैसे कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है स्टिल एज, तो स्टिल एज इज सिमिली। ओके, जैसे अपन ने अभी सिमिली लास्ट उसमें करी थी अपन ने, इफ आई से इन ग्रामर, तो यहाँ पे कंपेयर करा गया है फॉरेस्ट के साइलेंस को एक स्टिलनेस से। कौन सी स्टिलनेस? जब किसी की डेथ हो जाती है। दो द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, आई कैन hear him running about on the hillside, but I cannot see him. Again, due to mist, he cannot see Biju. Biju is might be servant, we'll be seeing later, कि वो उनको लग रहा था कि हिल साइड से भागता हुआ आ रहा है और अपनी सिस्टर को बुला रहा है। Now June 25th means another day. Some genuine early monsoon rains, warm and humid and not cold high altitude stuff we have been all year. So यहाँ पे क्या है कि हाई एल्टीट्यूड मीन्स ऑफकोर्स हाइट पे बात हो रही है, या एक हिल स्टेशन की बात हो रही है कि जहाँ पे हमेशा कोल्ड रहता है, बट आज जो अर्ली मॉनसून आया है उसकी वजह से वार्म हो रखा है एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमिडिटी है। द प्लांट सीम टू नो इट टू एंड द फर्स्ट कोबरा लिली reared its head from the fern as I walk up to the bank and post office. So here now the writer is might be going to bank or post office. There he see that a cobra lily is a common name कि बहुत सारे plants को वहाँ पे cobra lily कहते हैं। Rears means here, rear means growing on a fern. Now what is fern? A flowerless plant with the feathery green leaves. Now here you can see in picture कि जो leaves हैं वो feathery होंगी, means thick होंगी, might be उनके ऊपर small hairs भी होंगी। तो ये कह रहे हैं कि एक green leafy चीज़ में से वो एक if I again show you, yes, कि एक बड सिर्फ स्टार्ट हुआ है, रेयर होना मीन्स ग्रो कर रहा था वहाँ पे। नेक्स्ट लाइन, द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी। मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी मीन्स कि जब मिस्ट होती है तो वहाँ पे क्या होगी, उनको प्रिवेसी से कंपेयर करा गया। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस एंड all I could say was a paradise might have been. So here it is said कि when he was walking, then upon being asked by a school boy, author says what school boy asked कि how you can describe hill station, valleys, might be atmosphere.
तो उसका आंसर क्या था, अ पैराडाइज माइट हैव बीन। इट मीन्स, ओके, जो लास्ट लाइन है पैराडाइज माइट हैव बीन, इट मीन्स ड्यूरिंग मानसून सीजन द हिल स्टेशन एंड वैली मस्ट फील हेवनली, विच इज़ वाई इट इज़ रेफर्ड टू हेवनली और हेवन। पैराडाइज मीन्स हेवन, कि वो जो वहाँ की वैली है, हिल्स हैं, वो उस समय उनको कह रहा है कि वो एकदम पैराडाइज जैसे हैं। नाउ a day after, not 26 June, it is 27 June, it is written by here. The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. So now as the rain come, अपन अपने यहाँ पे भी देखते हैं कि जब बारिश होती है, वी सी मॉस्किटोज, वी सी अर्थ वॉर्म, वी सी ग्रास हॉपर्स एंड मैनी अदर वॉर्म्स। सिमिलरली देयर एज इट इज़ अ हिल स्टेशन, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि विजिटर्स मीन्स वो सिर्फ उस टाइम पीरियड में ही आते हैं, कि लेपर्ड उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पे देखा, एंड 7,000 लीचेस। व्हाट आर लीचेस? यू कैन से वाटर वर्म्स विच do blood sucking. Okay, next line. Yesterday afternoon the leopard lifted a dog from the near servants quarter below the school. In the evening, okay, just I see hurdled, so okay, we missed this word hurdled. hurdle means announce और brought the news of, कि जैसे ही रेन आई है वैसे ही वो अपने साथ क्या लाई है, कुछ लेपर्ड्स या 1000 विजिटर्स और लीचेस। So let's continue. Yesterday afternoon leopard lifted a dog from the near servants quarter below the school. In the evening it attacked one of the Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. Now here the author explains कि one afternoon या yesterday afternoon means on 26 June he says कि लेपर्ड ने किसी एक वहाँ पे जो काऊ है और डॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉग को तो वहाँ से वो ले गया लेपर्ड, एंड उसने ट्राई भी करा कि वो बीजू की कोई काऊ पे अटैक कर सके, बट ड्यू टू बीजूज मदर हु वाज स्क्रीमिंग कि अबाउट द लेपर्ड आउट ऑफ स्केयरनेस, तो वो उनकी जो काऊ है वो बच गई। इम्प्रिकेशन मीन्स कर्सेस, मीन्स वो इस तरीके से शाउट कर रही थी। कर्स मीन्स किसी को बद्दुआ देना, तो यहाँ पे वो लेपर्ड के डर की वजह से चीख रही थी, जनरली कर्स नहीं दे रहे थे, बट वो माइट भी इतनी इंटेंसिटी से बोल रही थी कि वो लेपर्ड भाग गया और उनकी जो बीजू की काऊ है वो बच गई। नेक्स्ट लाइन, एज फॉर द लीचेस आई शैल सून गेट यूज टू लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। सो व्हाट इज ब्लड लेटिंग? Losing blood. Decades ago, leeches were used to remove blood from the patient's body. Now, first of all, he told about leopard. Now he is saying that कि मुझे used to हो जाना चाहिए leeches के बारे में, क्यों? क्योंकि मेरे को ये समझ जाना चाहिए कि कभी ना कभी एक ना एक दिन blood lose होगा, might be from the person, might be from the animals. Other new arrivals are the scarlet minivets, the female and yellow, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of dragos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. So now what are scarlet minivets? Bright red birds like cuckoo, जैसे कुकू बर्ड होती है वैसे ही स्कारलेट्स होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि when it is monsoon it is so joyful, they are so pleasant, means they are आइस के लिए एक ट्रीट थी कि उन बर्ड्स को, रेड बर्ड्स को एक लीव्स पे बैठे देखना, फ्लिटिंग करना। फ्लिटिंग मीन्स मूव ईजिली, वेरी स्विफ्टली वो उन लीव्स के ऊपर बैठे हुए थे, और वो ऐसा लग रहा था कि एक ब्रिलियंट ज्वेल्स हो, मीन्स
यू कैन से प्रीशियस स्टोन्स जो देख के बहुत अच्छे लगते हैं, कितने ग्लिटरी होते हैं। सिमिलरली वो बर्ड्स को कंपेयर कर रहे थे। एंड वो नेक्स्ट वो कहते हैं ड्रोंगोस भी आते हैं इन ड्यूरिंग मानसून। व्हाट आर ड्रोंगो? अ सॉन्ग बर्ड विथ अ स्टाउट बिल, अ सॉन्ग बर्ड। सो इट इज़ अ बर्ड विच जो उनकी आवाज़ होती है वो बहुत स्वीट होती है। एंड उनकी जो बिल होती है, बिल व्हाट इज़ अ स्टाउट बिल, उनकी बीक बहुत छोटी होती है। सो लेट्स सी। एंड वो ये कह रहे हैं कि बर्ड्स जो थी वो अपने आप को कंसील नहीं कर सकती थी, मीन्स अपने आप को छुपा नहीं रखती थी, वो इन्जॉय कर रहे थे। और जितना भी ये नेचर का जो भी ट्रीट थी, ओके, इट इज़ अ नेचर ट्रीट कि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। जो जनरली ट्रीट होती है वो ह्यूमन प्लान करता है, बट इट इज़ नेचर ट्रीट कि मानसून आना, एवरीथिंग इज सो ग्रीनली, न्यू फ्लावर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स। सो सिमिलरली वो क्या कर रहे थे, जो बर्ड्स थे, दूसरे बर्ड्स, वो मिनी वेट्स को चेज कर रहे थे। चेजिंग मीन्स उनको भगा रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। A tree creepers move rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. Last word is insectivorous. What are insectivorous? Here you can write down. Insectivorous are the birds which feed on insects and worms. ऐसी birds जो कि सिर्फ इंसेक्ट्स एंड वर्म खाती हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रेथ? ड्रेथ इज लैक ऑफ समथिंग। क्रीपर यहाँ पे क्या है? जनरली क्रीपर का मीनिंग क्या होता है? विच मूव अलोंग द ग्राउंड, वो क्रीपर्स होते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जो वॉल के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे ट्री के साथ क्रीपर कैसे होगा कि ट्री की जो ट्रंक है, ओके, द मेन पार्ट ऑफ द ट्री, उस ट्रंक के साथ साथ उनकी ट्री की क्रीपर्स, ब्रांचेस वो साथ में ऊपर बढ़ रही थी ड्यू टू मॉनसून। हेयर इट इज रिटन स्नैपिंग, टेक समथिंग क्विकली और ईगरली। सो नाउ जब जो ओक ट्री था उसके जो क्रीपर्स उसी के ट्रंक के साथ ही ऊपर चढ़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो अपने साथ इंसेक्ट्स को भी ले रहे थे। माइट भी स्टिकी होता है तो इसलिए चिपक भी रहे हो। एंड वो अब ये कह रहे हैं कि अब जब रेन आ चुकी है तो यहाँ पे कोई भी जो बर्ड है वो कभी ड्रेथ मीन्स लैक ऑफ समथिंग, उनको खाने की कमी नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ का एग्जाम्पल दिया कि इफ़ वी हैव सीन रेनी सीजन, वी सी लॉट्स ऑफ वर्म, मॉस्किटोज, अर्थवर्म। सिमिलरली इट इज़ रिटन कि जैसे ही रेन आई है सडनली वो बर्ड्स के लिए एक ट्रीट हो जाएगी। सो बेसिकली इट इज़ अ नेचर ट्रीट टू वेदर इट इज़ ह्यूमन, वेदर इट इज़ एनिमल्स और बर्ड। सो these are some little miracles of nature which we and you also enjoy. So we end this video here. We'll be doing second part of this chapter in next video. Thank you so much. Stay safe.